Welcome to all. Today's topic is oxo acids of chlorine, which is one of a halogen. What are oxo acids? They are those compounds in which at least one OH group is attached to a central atom. Because here we are talking for chlorine atom, so for chlorine four oxo acids are found. So how to learn? See, ic acid, not only for chlorine compounds we are talking, for the phosphorus also and for the sulfur also. See, I have explained this all these oxo acids of phosphorus as well as chlorine in one of my video, which I will be sending the link in the description box. Please see it to make this video more clear. Again, here I am explaining you oxo acids of chlorine are of four types. Ic acid is that compound in which whose oxidation state is very commonly found, like your example. This is chloric acid, its oxidation state is +5. Us acid is chlorous acid will be what? Whose oxidation state is just one step less than ic acid. Now what will be chlorous acid? HClO3 is our chloric acid. One step down will be our chlorous acid, its oxidation state is +4. Now hypochlorous acid is whose oxidation state is just less than chlorous acid. So what will be it? Chlorous acid, HClO2 is our chlorous acid. When we are going for just one oxidation below, we will be having HClO. So this is our hypochlorous acid and its oxidation state is +1. Now if we are talking for perchloric acid, so the meaning of per is that compound whose oxidation state is more than ic acid. तो ic acid का oxidation state कितना है बेटा? +5. तो परक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट पर +5 से ज़्यादा ही होना चाहिए. तो वो फॉर्मूला क्या होगा? HClO3 इज़ अवर इक एसिड. इससे हम यदि एक स्टेप आगे जाते हैं तो अवर hypochloric acid we will be getting and its oxidation state is +7. So this is perchloric acid, this is hypochlorous, this is chlorous acid and this is our chloric acid. Now what will be, how to learn the structure? So I am showing you here the trick for that oxo acids to learn the structure of oxo acids. See here. Similarly, I have explained you in structure. I have given the trick to how to learn the structure of oxo acids of phosphorus. Same thing is here. If we have learnt, if we will draw a table between hydrogen atom, chlorine atom, oxygen atom, its oxidation state and the bond between chlorine and oxygen. And if another side we are putting HOOP. हमको सिर्फ इतना याद रखना है. एक साइड हम लिखेंगे HOOP, एक साइड लिखेंगे HClOOS ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्लोरीन ऑक्सीजन का बॉन्ड. यदि हम सिर्फ इतना लिखेंगे, सी फर्स्ट O इज़ फॉर अस एसिड, सेकेंड O इज़ फॉर इक एसिड. नाउ हाउ टू लर्न? 1 1 1 1 1. Write only this, don't learn this. 1 2 3 4 +1 +4 +5 +7 0 1 2 एंड 3. इसको यदि आपने याद कर लिया तो आप सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर पाएंगे ऑक्सो एसिड के. हाउ? अब कोई आपसे बोले हाइपोक्लोरिक एसिड का आप स्ट्रक्चर बताइए, तो क्या होगा फॉर्मूला? HClO ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा
और उसमें ClO बॉन्ड नहीं होगा। इसका मतलब एक जो O है वो किसके साथ है, OH के साथ इसमें अटैच्ड है। सेकेंड है अपना ऑर्थोक्लोरस एसिड, फार्मूला विल बी HClO2, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और ClO का एक एट बॉन्ड ClO एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऑर्थोक्लोरिक एसिड HClO3, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने प्रेजेंट होंगे इसमें, 2। सेम विल बी हियर पर HClO4, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और Cl डबल बॉन्ड O के बॉन्ड कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ पर अपने, 3। आपने यदि ये टेबल याद कर लिया तो आप ऑक्सो एसिड्स के, क्लोरीन के कितने भी ऑक्सो एसिड के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपसे कितने भी स्ट्रक्चर्स पूछते हैं, यू कैन सॉल्व इट। नाउ सी some more tricks I am giving you here. If it is asked acidic character of oxo acids of chlorine, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी। पहला, इफ़ दैट इज़ हैविंग सेम हेलोजन एटम, या और दूसरा हो सकता है आपका डिफरेंट हेलोजन एटम। यदि सेम हेलोजन एटम है लाइक दिस HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, यदि सेम हेलोजन एटम है तो ट्रिक आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे, आप ट्रिक इस्तेमाल करेंगे मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मोर विल बी इट्स एसिडिक कैरेक्टर। तो ऑक्सीजन एटम किसका ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। सिंपली यू हैव गिवन आंसर। बट नाउ व्हाट इज इट्स एग्जैक्ट रीज़न? इट्स एग्जैक्ट रीज़न इज मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन मोर विल बी इट्स C। यदि हम इसमें से सब में से H+ आयन रिमूव कर दें, व्हाट वी विल बी गेटिंग, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस एंड ClO4 माइनस। ये हमको आयंस मिलेंगे, एनायंस मिलेंगे। नाउ व्हाट इज इट हियर, सी व्हाट इज इट्स रीज़न, जिसका एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ClO4 का एनायन ये है, HClO3 का एनायन ये है, ClO2 का एनायन ये है और HOCl का एनायन ये है। जिस एनायन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका कंजुगेट एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। यदि ये याद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, बट यू कैन, दिस इज़ द ट्रिक फॉर same halogen atom. Now if we are having a question in which different halogen atoms are there, अब यहाँ पर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पे कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, द ट्रिक इज चेंज्ड। व्हाट यू विल डू नाउ, मोर द एटॉमिक नंबर ऑफ हेलोजन एटम लेस विल बी इट्स एसिडिक कैरेक्टर। जिस कंपाउंड में एटॉमिक नंबर हेलोजन का ज़्यादा है वो उसके एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। नाउ सी हियर वी आर हैविंग वन क्वेश्चन हेयर, HClO, HBrO, HIO, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेटस 1 तीनों की सेम है, पर इसमें डिफरेंट क्या है, हमारे हेलोजन्स का एटॉमिक नंबर चेंज हो गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, आयोडीन का, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। सेम इज हियर, ऑक्सीडेशन स्टेटस +5, हेलोजन्स आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज़्यादा है, आयोडीन का, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। सी नाउ व्हाट इज इट्स रीज़न, द ट्रिक वी हैव लर्नड, द ट्रिक फॉर डिफरेंट हेलोजन एटम इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ हेलोजन एटम। व्हाट इज द एग्जैक्ट रीज़न, द एग्जैक्ट रीज़न आई हैव रिटन हियर टू मेक नोट्स। The exact reason for this is, first is the electronegativity difference of halogen atom and second is the more electronegativity of
ऑक्सीजन देन हेलोजन एटम्स. अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन एटम से ज़्यादा है. इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन दैट हेलोजन एंड क्लोरीन इज शेयर टूवर्ड्स द ऑक्सीजन. इससे क्या होता है, OX बॉन्ड की पोलैरिटी चेंज, पोलैरिटी में थोड़ा सा डेवलप हो जाती. देखिए कैसे, इफ़ यू आर टॉकिंग फॉर दिस, कैसे होगा, ClO BrOIO. कुछ ऐसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पर व्हाट इट कम्स हेयर, Br से और ज़्यादा नेगेटिव है, इट कम्स हेयर, और यहाँ पर और ज़्यादा पास में आ जाता है. तो पोलैरिटी यहाँ पर, इफ़ हेयर इज़ 1, पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप हो गई, तो यहाँ पर पोलैरिटी और ज़्यादा डेवलप. सो दिस कंपाउंड इज़ मोर पोलर. ये वाला एनायन, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर, एंड दिस इज़ अवर लीस्ट पोलर. Now see here, which is this IO anion is more polar than ClO, and this lies in between ClOI and BrO. This BrO lies in between this and this. Now see here, smaller the oxygen halogen polarity. सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी कम है, सबसे कम पोलैरिटी किसकी है, ClO की. तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी होगी, इसकी होगी. इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. नाउ सी हियर, दिस आई हैव गिवन यू जस्ट टू राइट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.